بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپورٹس 360. میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز. بہت ساری گفتگو آج بھی آپ سے کریں گے. پہلے آپ کو میچ کا تھوڑا سا حال بتا دیتے ہیں کہ جنوبی افریقہ نے پاکستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ جو کہ سپر سپورٹس پارک میں جاری ہے وہاں پر ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا. پاکستان کو 4 کھلاڑیوں کا نقصان ہوا، لیکن اب کچھ اننگز میں سٹیبلٹی نظر آئی ہے. کامران غلام نے بہت حد تک پاکستان کو ایک بہتر سکور کی طرف گامزن کیا ہے، ان کا ساتھ دے رہے ہیں محمد رضوان. لیکن اگر شروعات کی تو شروعات بہت اچھی ہوئی پاکستان کی. 13-14 اوورز تک کوئی وکٹ کا نقصان نہیں ہوا تھا، 30 سے اوپر سکور تھا. سائم ایوب اور شان مسعود جو کپتان ہیں بہت ہی ایک زبردست اننگز کھیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے. لیکن ایک دم سے جب 13-14 اوورز کے بعد پانی کا وقفہ ہوا، اس کے بعد ایک دم سے پاکستان کی وکٹس گرنا شروع ہو گئی. سب سے پہلے شان مسعود آؤٹ ہوئے، اس کے بعد سائم ایوب، پھر بابر اعظم اور پھر سعود شکیل جنہوں نے آتے ہی 3 چوکوں کے ساتھ آغاز کیا اور سارے پریشان ہو گئے. ایون کامنٹری میں بہت ساری چیزیں ہمیں سننے کو مل رہی تھی وہاں پر. لیکن یہ ہے کہ مایوس کن رہا کہ 4 کھلاڑی آپ کے اس طرح کی شاٹس کھیلتے ہوئے آؤٹ ہوئے. تو اس کے بعد میرے خیال سے سب سے اچھی ڈسمسل اس میں سائم ایوب کی تھی. جس طریقے سے ان کو ڈین پیٹرسن نے سیٹ اپ کیا بہت ہی اچھا گیم تھا. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں گے تو کلیئرلی جو ججمنٹ ہے اس کا ایرر نظر آیا، شاٹ سلیکشن نظر آئی. لیکن اس کے بعد جس طرح میں نے کہا کہ ابھی تھوڑی سی اسٹیبلٹی نظر ضرور آئی ہے. بڑا امپورٹنٹ ٹیسٹ میچ ہونے والا ہے. کچھ لوگ کرٹیکل ضرور ہیں کہ شاید ٹیمبا بووما فیصلہ غلط کر گئے، کیونکہ آنے والے دنوں میں اوبیسلی جب موسم بہتر ہوگا تو یہ پچ اور تیز ہوتی جائے گی اور پھر پاکستان کی بولنگ کو کھیلنا مشکل ہو جائے گا. اور ساؤتھ افریقہ کی اگر آپ بیٹنگ لائن اپ کی بھی بات کریں تو اتنی کوئی ایکسپیرینس بیٹنگ لائن اپ نہیں ہے. اگر آپ ان کی پچھلی سیریز بھی اٹھا کر دیکھیں تو بووما کے اوپر ہی زیادہ ریلائنس تھی. ایک اننگز میں سٹبز نے بھی اچھا سکور کیا تھا، لیکن لگتا یہ کہ پاکستان کو تجربہ حاصل ہے. اور بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ اگر اچھا کھیل جاتی ہے تو پاکستان کے پاس بہت اچھا موقع ہے اس ٹیسٹ میچ کو اپنے نام کرنے کا. تو اس بارے میں ضرور گفتگو کریں گے، آپ کو بتائیں گے، آپ کو لیٹسٹ سکور سے بھی آگاہ کریں گے، اپڈیٹ کریں گے. اس کے بعد آپ سے مزید کچھ چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. کرکٹ سے ریلیٹڈ بہت ساری خبریں ہیں، خاص طور پر جب آپ پاکستان کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو تمام چیزوں سے آگاہ کرنا ہے، چاہے وہ چیمپئنز ٹرافی ہو. فائنلی اسکیجول بھی آ چکا ہے اور میرے خیال سے بہت ساری ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے چیمپئنز ٹرافی کو لے کر. لیکن اب باقاعدہ طور پر تینوں وینیوز ہوں، پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم، غدافی اسٹیڈیم لاہور اور ساتھ ہی ساتھ جو نیشنل بینک کرکٹ ارینا کراچی ہے، ان تینوں میں میچز ہونے جا رہے ہیں. ٹورنامنٹ کا آغاز جو ہے وہ 19 تاریخ کو ہوگا. 19 فروری کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کا مقابلہ ہوگا کراچی کے اندر. اور اس کے بعد جو 23 کی ایک ڈیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان بھارت سے کھیلنے جا رہا ہے، وہ میچ ہوگا دبئی میں. تو دبئی کو بھی نیوٹرل وینیو کنفرم کر دیا گیا ہے. اب تمام جو اسکیجول ہے وہ ہمارے سامنے ہے. پول بھی کی کمپوزیشن ہمیں پتہ تھی، لیکن اب تمام میچز کی جو اسکیجولنگ ہے اس سے آپ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کون سی گیم کہاں ہے. پنڈی میں 2 بڑے اہم میچز ہونے جا رہے ہیں. آل دو میں سمجھتا ہوں بڑا کم شیئر ہے پنڈی کا، لیکن پھر بھی چیمپئنز ٹرافی پورے طریقے سے پاکستان میں ہو رہی ہے تو اس بارے میں ضرور ہم گفتگو کریں گے. اس کے بعد آپ کو بارڈر گواسکر ٹرافی کے بارے میں بھی تھوڑا سا آگاہ کرنا ہے. آپ کو بتانا ہے کہ وہاں پر خاصی مشکلات ہوئی بھارت کو. بڑا ہی اچھا اومن رہا آسٹریلیا کے لیے، انہوں نے ایک نیا ڈیبیو دیا اور کیا شاندار اننگز رہی 60 رنز کی. لیکن ریمپ شاٹ کی بہت بات کی جا رہی ہے کہ ایک اننگز میں بمراہ کو 14 رنز لگے، ایک اننگ میں 18 رنز لگے، پھر وراٹ کوہلی کے ساتھ تھوڑی سی تکرار بھی ہو گئی. تو اس بارے میں ضرور گفتگو کریں گے. سٹمپس ہو چکے ہیں، 300 سے زیادہ رنز ہیں، تو لگ یہی رہا ہے کہ آسٹریلیا از ناٹ کمنگ سلو ایٹ دا مومنٹ. تو اس بارے میں ضرور گفتگو کریں گے. اور اس کے بعد آپ سے بات کرنی ہے مزید کچھ چیزوں کی. چیمپئنز T20 کپ کے بارے میں بات کریں گے جہاں پر مارخور کو شکست ہوئی. ABL اسٹیلینز نے یہ ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا ہے. بہت ہی زبردست کارکردگی رہی. ایک فائنل میں اگر آپ کو 100 دیکھنے کو مل گیا ہے اور 200 رنز بھی ہو گئے ہیں تو وہ سائڈ کلیئرلی آئی تھنک فیورٹ ہو چکی تھی. تو اس بارے میں ضرور گفتگو کریں گے. اور مارخور 130 رن سے پہلے ہی آؤٹ ہو گئی. اتنا کوئی آئی تھنک وہ فائٹ رہی نہیں اور بہت مشکل ہو گیا تھا دوسری اننگ میں چیز کرنا. پچ اتنا آسان نہیں تھا، لیکن مبارکباد دینی ہوگی اسٹیلینز کو. اور اسٹیلینز کی جب بات کریں تو شعیب ملک کا ذکر ضرور آئے گا. کچھ پرانی یادیں ضرور تازہ ہوئی ہیں، لیکن ایک بڑا اچھا ٹورنامنٹ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے. بہت سارے نام ہیں جن کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور ان کے PSL میں آئی تھنک بہت اچھے امکان ہیں کہ بہت سارے لڑکے جو ہیں وہ پک ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آپ سے مزید گفتگو کریں گے تو آپ کو بتائیں گے ICC نے پلیئرز کی نئی رینکنگ جاری کر دی ہے، اس کے بارے میں ضرور ذکر کریں گے. اور اینڈ میں آپ کو بتائیں گے نیشنل ویمنز باسکٹ بال چیمپئن شپ جس کا آغاز ہو گیا ہے اور چیمپئن شپ کا فائنل جو ہے وہ اس مہینے کی 30 تاریخ کو کھیلا جائے گا. تو اس بارے میں بھی ضرور گفتگو کریں گے. مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں. سب سے پہلے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں ہماری اسپورٹس ایکسپرٹ، پاکستان کی سابق کرکٹ کپتان، انٹرنیشنل کرکٹ کامنٹیٹر، براڈ کاسٹر اینڈ پریزنٹر ثنا میر. السلام علیکم. وعلیکم کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ساتھی اینکر اور ایکسپرٹ سعید محمد اویس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک احمد. آپ سنائیں. رات کی نیند نے شاید ہار کا غم بھلا دیا ہو، لیکن یار جو اللہ کی مرضی تھی اب ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے اس چیز پہ. سب سے اچھا طریقہ یہی ہے اس کو بھلانے کا. نہیں دیکھیں اللہ کی مرضی تھی. ہاں
मैं खुश हूँ कि चलें आपने एक्सेप्ट किया है ये हार, लेकिन आपके कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे दूसरी साइड पे सारी पाकिस्तान टीम खिला दी, तो ऐसे थोड़ी होता है टूर्नामेंट में, ज्यादती तो हुई है थोड़ी सी आपके साथ। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और तज्जिया कार जनाब मोहित शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शाह जी आप? अल्लाह का एहसान। ये आपने बात की, खेलना भी पड़ता है ना। हाँ, तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप खेले बगैर ही टूर्नामेंट खेले बगैर तो नहीं। नाम मेरे ख्याल से नहीं, वो बड़े लड़के लेके आए थे यार। ये आपका कहना बनता है। मेरे ख्याल से अवैस का नाम जो है वो टीम के साथ जुड़ा जरूर था, लेकिन वो जो एक कहते हैं ना आपके वो एक गुड लक चार्म लाना था, वो जो ये सदके के बकरे साउथ अफ्रीका भेज रहे थे, यहाँ लाना भूल गए शायद। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इनके लिए टूर्नामेंट रहा है, लेकिन इस पर भी जरूर आएंगे। पहले टेस्ट मैच के बारे में जरूर बात करनी है, और जैसा कि हमने आपको अपडेट भी की कि कामरान गुलाम और रिजवान ने बहुत हद तक पाकिस्तान को थोड़ा सा एक स्टेबल प्लेटफॉर्म दे दिया है। उससे पहले तक अगर आप देखें तो 4 खिलाड़ियों का नुकसान हुआ, 130 रन अब तक पाकिस्तान बना चुका है। कामरान गुलाम अपने 50 रन मुकम्मल कर चुके हैं, रिजवान जो है वो उनका साथ दे रहे हैं 23 रन पर। तो इस वक्त थोड़ा सा बैलेंस, एक थोड़ा सा सेशन पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है। सना, क्या कहना चाहेंगी? इट वाज नेवर इजी इन सुपर स्पोर्ट पार्क, और थोड़ा सा मौसम भी तब्दील हो गया, पिच वाज ऑन द स्लो साइड, बट यही कहा जा रहा है कि थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ होती जाएगी। बिल्कुल, सेंचुरियन और साउथ अफ्रीका की ओवरऑल जो पिचेस की क्वालिटी है वो यही रहती है कि पहला दिन थोड़ा सा स्लो रहेगा, तीसरा चौथा दिन बेस्ट हो जाएगा बैटिंग के लिए। और नज़र यही आ रहा है कि साउथ अफ्रीका कोशिश ही करेगा कि एक दफ़ा वारी करने के बारे में सोचा जाए, जिस तरह की उनकी बात लग रही थी, पर वो काफ़ी एम्बिशियस होगा अभी के लिए। 20 रन में 4 विकेट्स लिए उन्होंने, तो सेशन उनकी तरफ चला गया। शुरू में अच्छा सर्वाइव किया, अगर देखा जाए शान मसूद ने और साइम अयूब दोनों ने न्यू बॉल बॉलर्स को अच्छा सर्वाइव कर लिया था, लेकिन उसके बाद जब चेंज ऑफ बॉलिंग हुई, पैटिसन आए, तो वहाँ से फिर गेम हमने देखा कि बदला है। बॉश ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, तो 20 रन के अंदर आपके 4 विकेट्स गिर गई, और उसके बाद अब वापस मोमेंटम थोड़ा पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। कामरान गुलाम ने फिर 50 कर दिया, और सही मैन फॉर क्राइसिस पाकिस्तान के लिए हैं। इनकी सेंचुरी से एक टर्न अराउंड हुआ था हमारे पहले भी इंग्लैंड के अगेंस्ट भी मैच का, तो आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त ओवरऑल परफॉर्मेंस है। और जब तक ये दोनों वहाँ पर हैं तो बबूमा को बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगी अपने फैसले की, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप टॉस जीतते हो तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप 200 रन या 170-80 के करीब ऐसी पिच पे जहाँ पे थोड़ा ग्रीन भी है, बारिश भी हुई है, आपकी कोशिश होती है टेस्ट मैच में ताकि आप बड़ी लीड ले सको। तो अगर तो ये पार्टनरशिप और 15-20 ओवर चल जाती है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ड्राइविंग सीट में आ सकता है। अच्छा शाह जी, बड़ा रेयर है कि यहाँ पर आपको जो है ना वो पूरे 5 दिन की टेस्ट क्रिकेट देखने को मिले। बड़े तेज़ रन्स होते हैं, बड़े तेज़ टेस्ट मैचेस यहाँ पर ख़त्म होते हैं। ये आखिरी श्रीलंका वाला वाहिद था जो आखिरी दिन तक बड़े अरसे बाद कोई टेस्ट मैच ऐसा देखने को मिला साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के दरमियान। लेकिन अभी भी बबूमा का फैसला हो या थोड़ा सा जो चेंज अभी हमने देखना है पिच को, उसके लिए आपको भी लगता है कि शायद पाकिस्तान को एडवांटेज हो जाएगा? देखें, साउथ अफ्रीका के लिए एक टारगेट है, वो टारगेट है कि सीरीज में से एक टेस्ट जीतें और फाइनल में पहुंचे। तो वो टारगेट उन्होंने बायोकर बाइक्रोक अचीव करना है, तो वो उन्होंने कोशिश करनी है कि ऐसी पिचेस बनाएं। हालांकि ट्रेडिशनली सेंचुरियन जो है, जिसमें मैंने भी 2 टेस्ट कवर किए हुए हैं, ये कोई ज़्यादा पेस बॉलर को सूट नहीं करती, फास्ट बॉलर को सूट नहीं करती, अच्छी स्पोर्टिंग ट्रैक होती है, स्पिनर को भी सूट करती है। लेकिन टोटल इन्होंने इस दफ़ा ग्रास छोड़ा, और ग्रास इसलिए छोड़ा कि शायद, और इसी वजह से बबूमा ने टॉस जीता और टॉस जीत कर पाकिस्तान को खिलाया कि शायद ऊपर से विकेट्स लें, और जो उन्होंने ले भी ली बिफोर ड्रिंक्स, आफ्टर ड्रिंक्स। तो लेकिन बात ये है कि ये जो इनका टारगेट है वो अचीव करने के लिए इनको हर तरफ इनको करना पड़ेगा, एफर्ट करनी पड़ेगी, और वो कर रहे हैं। आज का देखें, आज का जो अभी सेशन, जो फर्स्ट सेशन की मैं बात करूँगा, जो फर्स्ट सेशन है वो उसमें काफ़ी पाकिस्तान को चांसेस मिले कि वो पाकिस्तान के ओपनर स्टे करें और स्टे करके लंबी इनिंग खेलें। शान मसूद और सैम दोनों ने बड़ा अच्छा एक, मैं कहता हूँ, स्टार्ट लिया, और इस स्टार्ट को आगे लेके जाना चाहिए था। फिर लूज शॉट खेली, सैम की बॉल तो जिस तरह आपने बताया बड़ी अच्छी पड़ी, फिर लूज शॉट खेली, और ऊपर नीचे 3-4 ऐसी लूज शॉट खेली गई कि पाकिस्तान अंडर प्रेशर आया। लेकिन अभी मैं फील करता हूँ कि पाकिस्तान इज़ वेरी मच इन द टेस्ट, और पाकिस्तान को एक स्कोर अराउंड 300 और 300 से ऊपर पाकिस्तान को करना चाहिए। जब आपको इतनी अच्छी एक पार्टनरशिप मिल गई है तो इसको कैरी करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग में स्कोर करे। और वही बात है कि ये जो पिच है, क्योंकि शुरू में आप बनाते हो पिच को, थोड़ा बहुत आप इसको पानी देते हो, इसका जो बिहेवियर है वो स्लो रहता है। जब धूप लगती है 1-2 दिन में, तो उसके बाद ये थोड़ी पेस इसकी निकलती है। तो वो बात ज़रूर इनके बैक ऑफ माइंड होगी, साउथ अफ्रीका की बात मैं कर रहा हूँ,
کہ یہ اتنی زیادہ سپائسی نہ ہو جائے, اتنا زیادہ سپورٹ نہ کرنے لگ پڑے کہ پاکستان کے بالر جو ہیں وہ ہم پہ حاوی ہو جائیں اور ہماری بیٹنگ لائن اپ کو انڈر پریشر کر لیں. یہ اب دیکھنے والی بات ہے. اور اس کا سب سے بڑا دار و مدار احمد میں بتاتا ہوں کہ پاکستان کتنا زیادہ سکور کرتا ہے پہلی اننگ میں. اگر پاکستان ایک اچھا سکور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ساؤتھ افریقہ کی بیٹنگ لائن اپ ضرور انڈر پریشر آئے گی, تھوڑا پچ میں جان بھی آ جائے گی, تھوڑا سپورٹ آپ کو اور ملے گی. اور پاکستان تو ویسے ہی پاکستان نے کوئی اسپیشل اسپنر رکھا نہیں, پاکستان بھی آل آؤٹ جا رہا ہے. پچ کو دیکھ کے دیکھا کہ جی گراس ہے اور گرین لگ رہا ہے یہ, اور اچھا پیسی وکٹ لگ رہی ہے, اور پاکستان بھی آل پیس اٹیک ہے پاکستان کا. بڑا انٹرسٹنگ ہو ہاں گیا یہ کہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ مجھے فیل ہوا تھا کہ شاید ایک آدھ اسپنر یہ ڈالیں, کیونکہ لیکن وہ اتنا زیادہ اس کا بیہیویئر سامنے اپیرنٹ لگ رہا ہے کہ یہ بالکل ہی انہوں نے اپنی مرضی کی وکٹ بنائی ہے. اب کتنا سکور کرتا ہے پاکستان, کتنا فرسٹ اننگ کو لے کے چلتا ہے, ٹیسٹ کا الٹیمیٹ رزلٹ آپ اس پہ آپ دیکھیں گے. کیونکہ سیکنڈ اننگ میں کھیلنا میں نہیں فیل کرتا کہ پاکستان کے لیے بھی آسان ہوگا اور ساؤتھ افریقہ کے لیے بھی آسان ہوگا. بالکل آئی تھنک جس طرح ٹیسٹ میچ پروگریس کرے گا تو مشکلات ہو جائیں گی, لیکن ویسے تھوڑی سی اب اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے. یہ شاید ضروری بھی ہے پاکستان کے لیے کہ آپ اتنا سکور کر دیں, لیکن یہ پہلے بھی آپ نے بھی یہ ساری ڈسکشن کا آپ بھی پارٹ تھے کہ اگر پاکستان کے بیٹرز اچھا پرفارم کر جاتے ہیں تو اونس پھر ساؤتھ افریقہ پر زیادہ ہو جائے گا, کیونکہ اتنی زیادہ پورٹنٹ وہ بیٹنگ ہے نہیں. اس میں ایک دو پرفارمنسز ضرور رہی ہیں سری لنکا کے خلاف, لیکن اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں کیری کر رہے. دیکھیں اگر پاکستان کی آپ بیٹنگ کی بات کریں تو اگر اس ٹیسٹ میچ کی بات کریں تو سب سے پہلے مجھے ان دا فائر آپ کریں, آپ کو بیٹنگ لائن اپ تھی, خاص کر کے اوپننگ ڈپارٹمنٹ کی بات کریں. عبداللہ شفیق ہے نہیں, آپ نے شان مسعود کو اوپن کرایا, اور وہی اوپننگ ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ جس کے لیے وہ پوری زندگی کھیلتے رہے. وہ یو بی ایل کی بات کریں چاہے کاؤنٹی سیزن کی بات کریں. میں بھی پڑھ بھی رہا تھا 20 اننگز کی اگر بات کروں ساؤتھ افریقہ کی, خاص کر کے جسٹ ناٹ دس وکٹ, 20 اننگز کی بات کروں جو لاسٹ ابھی کھیلی گئی ہیں, اس میں جو اوپننگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی پارٹنرشپ حد تک صرف 16 تک گئی ہے. ہم نے کم از کم وہ جو مارک ہے نا اس کو عبور کر کے ہم 36 ہم نے ڈبل کر دیا, ہم نے 36 کر دیا اس چیز کو. لیکن نہیں 32 ہوتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, 4 رن جو بھی بائی کے بھی تو 4 رنز لینے تھے نا جو بھی تھا ہم نے اس کو کر کے اس تک لے کے گئے. مسئلہ سارا تھا گیم آف پلے کی بات کروں. اگر اس وکٹ کو ابھی تک آپ جج کریں تو یہاں پر صاف سی بات نظر آتی ہے کہ آپ اگر کہو کہ میں نے باڈی کے اوپر بال لے کے کھیلنا ہے تو بھائی وہ والی وکٹ ہے کوئی نہیں, آپ نے اگریسو کھیلنا پڑے گا. سائم ایوب کی کل بھی بات ہی کر رہے تھے کہ جو اس کا نیچرل پلے آف انٹینٹ ہے اس کو کھیلنی پڑے گی. اگر آپ اس کو چینج کرواؤ گے تو آپ نقصان اٹھاؤ گے. پیٹرسن کی اگر آپ بال دیکھو جو سائم کو اس نے آؤٹ کیا ہے وہ بڑی عقل مندی والی گیندیں تھی. 2 گیندیں اس نے آؤٹ سوئنگ کروائی ہیں لیٹ, جہاں پر 4 میٹر کا ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ ڈرائیو کرنے جاتے ہیں کوشش کرتے ہو کہ شاید بال جو ہے وہ تھوڑا سا لیٹ سوئنگ ہوگا. اگر آپ اس کی بال کو چیک کریں, تیسری اس نے سیم ہٹ کی ہے, سیدھی اپنا بال کرائی, کیونکہ سائم ایوب شاید 2 مائنڈز میں تھے کہ میں اس کو ہٹ کروں یا اس کو پیچھے اپنا ڈرائیو کرنے کی کوشش کروں, جو کہ ان کا بڑا ایک فیوریٹ شاٹ ہے جو کٹ پہ کھیلتے ہیں. یہ چیزیں آپ سائیکولوجیکلی کھیلتے ہو ایک بیٹسمین کے ساتھ, آپ کو اس کی نیچرل اپروچ پہ جانا پڑے گا. کامران غلام اس پہ فائدہ کیوں ان کو رہا ہے, انہوں نے آتے ہی آپ دیکھیں اگریسو اننگز کھیلی. آپ کو اس وقت بلکہ سٹیبلٹی چاہیے تھی, لیکن اس نے جو اگریسو اننگز تھی اس سے اس نے سکور بھی حاصل کیا. ابھی آپ کا 78 یا 79 کی پارٹنرشپ اس وقت تک ہو چکی اور اچھی ہے یہاں پر. لیکن پہلی اننگز میں آج بھی کہتا ہوں پاکستان کو ایٹ لیسٹ 300 پلس کرنا پڑے گا. ساؤتھ افریقہ کی بیٹنگ لائن اپ اگر آپ پوری اٹھا کے دیکھو, چاہے وہ آپ بات کریں اس وقت سٹبس کی بات کر لیں, آپ ماکرم کی کر لیں, یہ وہ قسم کے بیٹسمین ہیں جو کہ سیمنس قسم کے ہیں کہ 20-25-30 تو کریں گے, لیکن جہاں پر ان کے اوپر پریشر آئے گا وہ آپ کو وکٹ ضرور دیں گے. لیکن نٹشل آپ یہ کہیں گے یہاں پر آپ کو تھوڑا سا اگریسو کھیلنا پڑے گا. کل بھی کھیلنا تھا, کل نہیں کھیلے آپ. دیکھیں 2 چیزیں, کل تو obviously میں چاہوں گا کہ آپ ایٹ لیسٹ آپ سپینڈ کریں ٹائم اس کے اوپر, لیکن احمد بھائی ابھی تک اگر آپ بال کو اٹھا کے دیکھو نا اس کی 16-17 اوور کی میں بات کروں, شائن ابھی تک ہے, گراس آپ کا لائیولی ہے. یہ آپ کو جا کے آگے جو شاجی اور ثنا وغیرہ ہم بات کر رہے ہیں, جتنا یہ ٹائم گزرے گا وکٹ اور تیز ہوگی. ایک جون سا پوزیشن میں آج بھی کہتا ہوں پاکستان ٹیم میں مسنگ ہے, جب آپ ٹیرو کوئک کی بات کرتے ہیں. نسیم شاہ تو آپ کے پاس موجود ہے لیکن اس کی پیس ڈراپ ہوئی ہوئی ہے, فٹنس کا ایشو اس کو رہا ہے. اس وکٹ کے اوپر ٹیرو کوئک ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. لیکن میرے خیال سے ان کنڈیشنز میں آپ یہ چیمپئنز کپ کھیلیں اس کے بعد تو آپ کو اتنی زیادہ گرینری لگ رہی ہوگی یہ والی, کیونکہ وہاں پہ تو گھاس اتنا وہ پورٹنٹ رہا نہیں, گراؤنڈ میں برف پڑی, موسم بھی اس طرح کا تھا. لیکن کامران غلام کو پرٹیکولرلی کیونکہ ابھی بہت اچھا کھیل رہے ہیں, میں نے جو ہی بابر اعظم آؤٹ ہوئے اور مطلب پاکستان ایک بیک فٹ پر وہاں نظر آیا کہ ایک بہت بڑی وکٹ ساؤتھ افریقہ نے لے لی, مومنٹم چینج ہو گیا. کامران غلام کی اگر میں اننگز دیکھوں تو جو پہلی 1-2 گیندیں بھی انہوں نے فیس کی,
विजुअल ऑप्टिक्स बड़े ज़रूरी होते हैं, आपको देखकर जज हो जाता है कि कौन कितना कंफर्टेबल है और कौन कितना नहीं है। लेकिन बार बार मैं वही बात करता हूँ कि एक बंदा जिसने इतना डोमेस्टिक में टाइम गुजारा है वो किसी भी सिचुएशन को फिर समझ पाता है, और वही हमने देखा कि वो पहले ओवर से ही बेशक वो लेफ्ट कर रहे थे या रोक रहे थे, उनके कदमों से अंदाज़ा हो रहा था कि बड़े कंफर्टेबल लग रहे हैं इन द सेंटर। देखिए ये इस प्रोडक्ट को कहते हैं कि आपने उसको पूरा पकने दिया। हम अक्सर रॉ प्लेयर्स को फेंक देते हैं ऐसी सिचुएशंस में जिसके लिए हमने उनको तैयार नहीं किया होता, और इसीलिए लंबे फॉर्मेट को खेलने की आज तक हर कोई बात करता है। इवन दो कि मुझे नसीब नहीं हुआ कि हम टेस्ट खेलते, पर उसकी अहमियत का मुझे अंदाज़ा है एज अ क्रिकेटर कि जो प्लेयर उधर का रगड़ा खाया होता है, जिसने उसके ग्राइंड्स सारे किए होते हैं, तो उस प्लेयर को एडजस्ट करना वनडे में और T20 में कोई मुश्किल काम नहीं होता। आप वहाँ से एक दफ़ा परफॉर्म कर लें, फिर ये आपको कोई, कल मोहम्मद अली भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने तो यही बात कर रहे थे जब हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट था, उसमें भी वो यही कहते कि उस रेड बॉल क्रिकेट खेलने के बाद आपको इधर रन्स करने का कोई मसला नहीं होता। तो कामरान गुलाम वो उसकी मिसाल है आपके सामने। उन्होंने फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले, कायदे आज़म ट्रॉफी पे रिकॉर्ड्स कायम किए, और उसके बाद जब हम उनको T20 वनडे फॉर्मेट में लाए, थोड़ा सा टाइम लगा उनको T20 में सेटल होने में, पर आप वनडे फॉर्मेट उठा लें, आपको T20 अब उठा लें, टेस्ट उठा लें, वो अपनी जगह पे अब कंफर्टेबल नज़र आते हैं। तो जब आपके पास इतने रन्स होते हैं, जब आपने हर तरह की सिचुएशन को खेला होता है, हर तरह की कंडीशन को खेला होता है, क्योंकि पाकिस्तान में रिसोर्सेज कम है, बेशक पिचेस जैसी भी हों, कभी कभी वेदर कंडीशंस की वजह से, गलत टाइम पर टूर्नामेंट रखने की वजह से इस तरह की कंडीशंस में खेला होगा कामरान गुलाम ने, तो वो सारी चीज़ें आपको फिर काम आती हैं। जब आप कोई फ़ोन करा के अपने आप को फास्ट लेन में से फास्ट ट्रैक करा के लाते हैं, तो उस प्लेयर का जो पहले 10-15 मैच होते हैं और इस तरह के प्लेयर जो परफॉर्म करके आते हैं, उनके मैचेस में बड़ा फ़र्क होता है, और वो साफ जाहिर भी है। तो आई थिंक ये बड़ी ज़बरदस्त एक पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में एक प्रॉब्लम आ रही थी। असद शफीक जब से गए उसके बाद इन्होंने अच्छा खेला, अपना सऊद शकील ने उन्होंने संभाला, पर सारा का सारा प्रेशर एक पे नहीं डाल सकते। तो अब इनके आने से ये बड़ा फायदा हो गया कि अगर सऊद शकील नहीं भी किसी मैच में करते तो आपके पास ये बफर मौजूद है रिजवान के साथ। अच्छा, ये पेयर बड़ा अच्छा है, और मैं तो खैर पर्सनली आई एम अ बिग फैन ऑफ सऊद शकील। मेरे ख्याल से आज भी जिस तरीके से उन्होंने वो 3 चौके लगाए, नॉट ओनली के बिकॉज ही वाज एग्रेसिव, लेकिन वो बड़ा ज़रूरी था उस मौके पर कि अगर गेंद वहाँ पर है तो आप उसको बाउंड्री तक पहुँचाएं, तो एकदम मोमेंटम ज़रूर शिफ्ट होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट था जिस तरीके से वो ग्लव लगा डाउन द लेग साइड आउट हो गए, वो इट वाज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि पिछले पाकिस्तान का कोई आई थिंक 1 साल का मवाजना अगर आप कर लें तो सऊद शकील हैज़ बिन देयर इन द मिडल ऑर्डर। लेकिन सना की बात आई थिंक एक स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ द फैक्ट कि अगर कामरान आए हैं तो वो एक और स्टेबिलिटी उस मिडल ऑर्डर को आप दे रहे हैं, लोअर मिडल ऑर्डर को दे रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान पहले स्ट्रगल करता रहा है। लेकिन एक बहुत अहम प्लेयर बन गए हैं पाकिस्तान के लिए कामरान गुलाम। मुझे अभी भी याद है शाह जी कि हम मुख्तलिफ अपने पाकिस्तान टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म्स पर ही बैठ कर कह रहे होते थे कि खिलाएं इनको, खिलाएं, इन्होंने रिकॉर्ड स्कोर कर दिया है कायदे आज़म ट्रॉफी में। लेकिन सना की भी बात ठीक है, शायद हमारा ऑब्सेशन हो गया है कि हमने फ़ौरन एक यूथ टैलेंट आइडेंटिफाई करके उसको फेंक देना है, और एकदम से फिर हम वेट करते रहते हैं कि शायद वो हमें डिलीवर कर दे, और जब वो नहीं करता तो जितनी जल्दी वो टैलेंट आया होता है उतनी जल्दी बाहर चला जाता है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। आप पूरा पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का एक हिस्ट्री देखें या स्ट्रक्चर देखें, या जिन्होंने फॉलो किया पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट, उनसे आप बात करें तो एक बात बड़ी क्लियर है। सना ने तो कहा जी कि फ़ौरन नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन इतना लेट भी नहीं खिलाना चाहिए। ये दोनों हमारे दोनों कॉन्सेप्ट बड़े एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। या तो हम 18 साल और 17 साल के बच्चे को हसन रजा की तरह डज करके टीम में डाल देते हैं या हम 30 साल तक मिसबाहुल हक को इंतजार कराते रहते हैं। हाँ, मिसबाहुल हक को इंतजार कराते रहते हैं, मोहम्मद इरफान को इंतजार कराते रहते हैं, हालांकि 7 फुट का एक सामने आपको बॉलर नजर आता है, तो फिर हम उनको चांसेस देते हैं। ये एक मिडल वे होना चाहिए, ऐसा मिडल वे होना चाहिए जहाँ जो आप पकाते हैं अपने टैलेंट को, वो पकने से ख़राब होने की तरफ ना चला जाए। तो वो उससे पहले ही आप उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर दे दें। इसका थोड़ा सा ज़रूर कामरान गुलाम को थोड़ा सा डिले किया गया। मेरा ख्याल है ये आपके पिछले 2 साल पहले या 2.5 साल पहले या 3 साल पहले इनको खेल जाना चाहिए था और इनको परमानेंट टीम का हिस्सा होना चाहिए था। इसी तरह कभी हम बहुत ज़्यादा चांसेस दे देते हैं कि जी बड़ा टैलेंट है, इसको 20 मैच और 25 मैच दे दें और ये खेलता रहेगा, चलेगा। ठीक है, टैलेंट है, तो फिर आप सबको थोड़ा, जब जिसको आपने रख दिया, फिर आपने 18 साल या 19 साल के या 20 साल के बच्चे को आपने रख लिया, तो उसको फिर चांसेस लॉन्गर रन में आपने देखा है, जिस तरह आज ऑस्ट्रेलिया का अपना 19 साल का
कॉन्टेस्ट जो है वो 19 साल का वो किया है, उन्होंने, तो डेब्यू किया है, तो शायद उन्होंने टैलेंट देखा और जिस तरह की शॉट्स खेल रहा था पता लग रहा था कि बच्चे में टैलेंट है। तो अगर टैलेंट है उसमें तो फिर उसको लॉन्गर रन आप दें। आपने सैम अयूब को लॉन्गर रन दिया, टैलेंट था तो उसने प्रूव कर दिया। इसी तरह आपको अगर टैलेंट है, वो टैलेंट देखने वाली नज़र जो है ना जी, वो कभी अच्छे लोगों की नज़र पड़ जाती है और कभी जिनको पता ही नहीं होता उनकी नज़र पड़ जाती है। बहुत अच्छे लोगों की वो खम खा के कहते हैं कि इसमें टैलेंट है। ये जरा प्रॉब्लम पाकिस्तान की क्रिकेट में है। लेकिन शाहजी इस पूरी डिबेट के अंदर ये भी जरूरी है कि हम एक मिनिमम थ्रेशोल्ड आज तक डिसाइड नहीं कर पाए, क्योंकि अगर आप किसी को देखें, अब आपने साइम की बात की तो वो मेरे ख्याल से जनरेशनल टैलेंट है, वंस इन अ जनरेशन ऐसा टैलेंट आपको मिलता है, तो आपने खिला दिया, कोई माइंड नहीं कर रहा अगर आप उसको support करें। लॉन्गर रन भी आपने दिया, ठीक किया आपने। लेकिन इस दौरान देखें आप पिछले 5 साल में कितने ऐसे प्लेयर्स होंगे, हमने समी असलम का केस देखा, उस्मान सलाउद्दीन बहुत अच्छे प्लेयर थे, उनका केस देखा, उमर अमीन अब जाकर बहुत अच्छे हो गए हैं, जब उनको खिलाया था तब शायद वो तैयार नहीं थे उसके लिए। हमाद आजम का केस है बिल्कुल। तो ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जो शायद नहीं, ये सारे आपके देखें डोमेस्टिक क्रिकेट की पैदावार थे ना, उनकी प्रोडक्शन थी, खेले भी, उनको किसी को टाइमली चांस न मिला, किसी को मिल गया तो उसको गलत टाइम पे चांस मिल गया, और किसी को आपने इंतजार नहीं कराया कि इसको जरा सही मैच्योर होने दें तो फिर इसको हम खिलाएं जाके। ये प्रॉब्लम पाकिस्तान की क्रिकेट में है, और मेरा ख्याल है उसका ज़्यादातर मैं खुद फील करता हूँ कि उसकी सबसे बड़ी वजह जो क्रिकेटिंग बोर्ड है ना जी, इसमें चेंजेस जो आती है ना, तो उनके साथ जो लोग आते हैं वो डिफरेंट आ जाते हैं। तो आप अगर एक को किसी को आपने फोकस किया हुआ कि ये प्लेयर बड़ा अच्छा है, उसको फोकस किया हुआ, तो शायद दूसरा सेटअप जो आता है वो उसकी तरफ बिल्कुल उसकी तवज्जो नहीं होती और वो निकल जाता है, उसकी उम्र निकल जाती है, उसका वो एक प्राइम टाइम जो आता है वो निकल जाता है। देखें, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आते हैं तो एक अच्छे प्लेयर को थोड़ा बहुत टाइम चाहिए होता है एडजस्ट करने में। इंटरनेशनल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, इनमें काफ़ी फ़र्क होता है, तो वो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, और कॉन्फिडेंस आने में थोड़े मैचेस चाहिए होते हैं। तो वो अगर आप दूसरा सेटअप क्रिकेट बोर्ड का आएगा, उसको आपने डिस्कार्ड कर दिया, उसको आपने कंसिडर ना किया, तो फिर उसका टैलेंट आपने ज़ाया कर दिया, और जो पाकिस्तान को सर्व करना था उसने, वो फिर सर्व नहीं कर सके। वो बिल्कुल। वैसे अभी भी बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो बड़े कंसिस्टेंट रहे हैं, जिनको अभी तक मौका नहीं मिला। फैज़ान रियाज उनमें से एक हैं, बहुत अच्छा खेलते रहे हैं डोमेस्टिक सीजन के अंदर। उसके अलावा भी बड़ी नोटेबल परफॉर्मेंसेस रही हैं जिनको हम देख सकते हैं कि अगर उनके पास इतना एक्सपीरियंस 20 से 30 या 35 फर्स्ट क्लास मैचेस का है तो वो आपके लिए एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं पाकिस्तान के लिए। देखिए, फैज़ान रियाज एक सबसे बड़ा एग्जांपल आपके लिए। उस्मान सलाउद्दीन की तो हम बात करते हैं, बहुत बड़ा टैलेंट था, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने, शायद मैं कहता हूँ, हमने कदर नहीं की उसकी। जिस तरीके का परफॉर्मेंस वो देता हुआ कंसिस्टेंटली आता रहा, और मैंने कभी नेगेटिविटी नहीं सुनी। होता है ना कि बंदे का प्रेशर कुकर फटता है, वो कहीं ना कहीं अपना बात करता है, मैंने कभी उसके मुंह से बात नहीं सुनी। फैज़ान रियाज एक्सेप्शनल टैलेंट, हमारी खुद भी बात होती रही इस मामले पे। कुछ लोग हैं जो देख के उसको कहते हैं नहीं, ये नहीं, मज़े का प्लेयर नहीं है, लेकिन आपके सामने जिस तरीके से वो स्कोर पे स्कोर करता हुआ गया, फिर स्लिप का बड़ा सेफ फील्डर आपके लिए। लेकिन मसला ये है कि अब एज आहिस्ता आहिस्ता आपकी ढलती जाती है, फिर आप देखते हो कि आपने फ्यूचर प्लानिंग क्या करनी है। क्योंकि हम यहाँ पर बैठ के यही बात करते हैं ना कि आप इस वक्त प्लान करो T20 वर्ल्ड कप की, आप प्लान करते हो आगे जाके जो इसके बाद वर्ल्ड कप आना है, कि आपने उसके लिए प्लान करना है, अपनी टीम बनानी है, आप उसके फैक्टर को भी देखते हो। लेकिन अच्छी बात है, मैं खुद भी इस चीज़ पे थोड़ा सा होता हूँ कि यार डेट्स गलत हैं टूर्नामेंट्स की, आपने बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स कर दिए हुए हैं, प्लेयर के पास रीहैब वाला मामला अब है नहीं, उसने अपने आप को फिट किस तरीके से रखना है, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। लेकिन जो टूर्नामेंट्स इस वक्त हो रहे हैं, एटलीस्ट मेरे लिए सिर्फ एक चीज़ अच्छी लगती है कि कम से कम यार वो लड़के जिनको कोई अनसंग हीरोज़ की बात कर लें, या जो एक स्टेपिंग स्टेज के ऊपर है, जिनको नहीं जानता, वो टीवी पे आते हैं, 2-3 अच्छी इनिंग्स खेलते हैं, आउट करते हैं बड़ी टीम के खिलाफ। मैं हूँ या कोई भी है, सोशल मीडिया पे उनकी बात होने लग पड़ती है कि यार ये लड़का, इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। जैसे कल के मैच की बात करें, माज मुझे बड़ा एक अच्छा प्रोस्पेक्ट लगा, जो अंडर 19 का ओपनर है। उसके बाद फैज़ान की आप बात कर लें, लड़के अच्छे हैं आपके पास पूल ऑफ क्रिकेट ज़्यादा हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये होता है अहमद भाई, इससे पहले भी आपको याद हो, जब आप बहुत पहले अरसे की बात करते हो, जब ABN AMRO का एक टूर्नामेंट होता था, दुनिया का मशहूर तरीन टूर्नामेंट था T20 का, मुझे बताएं कि उसमें से भी कितने लड़कों ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। या टूर्नामेंट जब खत्म होता था तो पूल ऑफ क्रिकेटर्स जो आप निकालते हो, कितनों को ग्रूम किया, कितने पाकिस्तान शाहीन्स में, कितने पाकिस्तान खेले, बहुत से लड़के गुम हो जाते हैं आपके। ये टूर्नामेंट्स आप करवाते हो, लेकिन इसके बाद कोई प्लान नहीं है आपके पास कि यार हमने कोई लड़के से निकाल के हमने T20 के लिए ग्रूम करने हैं। आज आप साइम अयूब की स्पेसिफिकली हम भी बात कर रहे हैं कि अच्छा प्रोस्पेक्ट है, सारा है, लेकिन थोड़ा सा मेरा शायद डिफर इस चीज़ पे है कि यार बहुत तगड़ा प्लेयर है लेकिन यंगस्टर है। हम गलती क्या कर जाते हैं, हम एकदम कंपेयर करने लग पड़ते हैं लेजेंड्स के साथ। यार सईद अनवर के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, बिल्कुल अभी टाइम चाहिए। आप देखो उसको इतना एकदम चढ़ा रहे हो,
खुदा न खास्ता उसमें डिप आया तो दैट मींस साइकोलॉजिकली वो नहीं ये बड़ी बर्दाश्त अच्छी करेगा बात उसको। आपने की। मोहम्मद रिजवान ने भी ये बात की थी कि जब उनसे पूछा गया पोस्ट मैच में सीरीज वनडे इंटरनेशनल की जो सीरीज पाकिस्तान जीता, उसके बाद उन्होंने भी कहा कि मैं ज़्यादा बात इस पर नहीं करना चाहता, बहुत ज़्यादा बात इस पर हो गई है, तो अभी इज़ गॉट अ लॉन्ग वे टू गो एज वेल। तो आई थिंक ये बड़ी पर्टिनेंट बात है। बट साथ ही साथ आपको अपडेट एक बार फिर दे देते हैं, पाकिस्तान के 4 ही खिलाड़ी आउट हैं, 140 की तरफ गामजन है, तो एक अच्छी पार्टनरशिप अब नजर आ रही है। आपसे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की लाजमी बात करनी है, आज बड़ा मुश्किल दिन रहा जी। शाह जी 5वां आउट करवा दिए, 5वां आउट कमरान गुलाम आउट हो गए। कामरान गुलाम आउट हो गए जी। यार अपना फोन बंद करो। नहीं है वैसे मेरे फोन से तो नहीं, हम तो आपसे बात कर रहे थे, अब आपने पता नहीं देखा कि नहीं। चले कामरान गुलाम आउट हो गए जी, 5वीं विकेट का नुकसान है पाकिस्तान को। और अब थोड़ा सा ज़रा आई थिंक रिजवान पर ओनस ज़्यादा हो जाएगा कि यहाँ से कितना एक स्कोर पाकिस्तान आई थिंक 200 प्लस तो जाना ही है, लेकिन अगर 250 से ऊपर कर देते फिर तो बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की बात करें तो बड़ा मुश्किल दिन रहा भारत के लिए। 6 खिलाड़ी ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया के ज़रूर आउट हुए हैं, लेकिन 300 से ज़्यादा रन हो चुके हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस टेस्ट मैच में सिर्फ वो कॉन्स्टास का डेब्यू नहीं है, या जो उन्होंने रैम्प शॉट्स मारी हैं और एक ओवर में 14 एक ओवर में 18 हैं, वो भी नहीं है। वो ये है कि थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट आ गया कि ऑस्ट्रेलिया के वो जो टॉप 4 परफॉर्म नहीं कर रहे थे, आज वो चारों फॉर्म में नजर आ गए और ट्रेविस हेड जो है बगैर स्कोर किए आउट हो गए। हाँ, वो बड़ी विकेट मिली है बुमराह को। और आई थिंक जिस तरह की स्टार्ट किया है 19-year-old लड़के ने, आई थिंक रैम शॉट दूसरे मैच में, तो वही जब शाहजी बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आके थोड़ा टाइम चाहिए होता, तो मुझे वही आ रहा था दिमाग में कि अब की जो जनरेशन है ना, उसको नहीं वो नेक्स्ट लेवल है। और ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया का जो डोमेस्टिक है उसका भी स्टैंडर्ड फिर इस तरह का है कि आप डायरेक्टली वहाँ से उठा के प्लेयर्स को यहाँ पे ला सकते हो। तो जिस तरह की स्टार्ट उन्होंने दे दी है, वो एक्चुअली दे वेंट अंडर द स्किन ऑफ द इंडियन टीम। ऐसे नहीं विराट कोहली ने आके उनको टक्कर लगा दी और 20% अपनी मैच फीस ज़ाया करवा दी है, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने खेला है वो बिल्कुल आगे रिस्पेक्ट नहीं दी बॉलर्स को। बुमराह जैसे बॉलर को आप सेकंड ओवर में रैम्प रिवर्स मार रहे हैं, तो मतलब ये सारी चीज़ें मॉडर्न डे के हिसाब से हैं। आप टेस्ट डेब्यू पे आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है और आप कितनी बातें सोच रहे होते हैं, उसने सबको निगेट कर दिया और बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में ऑस्ट्रेलिया को ले आया। और आई थिंक यही ब्यूटी है आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट की, जिसके ऊपर हम T20 को कहते भी हैं कि इसने क्रिकेट ख़राब कर दिया, बट दूसरे एलिमेंट से देखो तो उसने क्रिकेट में बहुत ज़्यादा एक वेरिएशन एक ऐसी ले आई है कि आप टेस्ट मैचेस में भी आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के मौके उसके अलावा भी मिलते हैं जब अच्छा सेशन कोई लगा होता है टेस्ट क्रिकेट। अच्छा, मैक्सवीनी के बारे में शाहजी बहुत सी बात हो रही थी कि उनको शायद खेलना था या बॉक्सिंग डे, वो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह बैठे थे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द टेस्ट मैच, लेकिन वो ड्रॉप हो गए। अगर कॉन्स्टास की बात करें तो अब इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट ये बन जाता है कि हमारा क्योंकि मवाजना ये होता है कितने फर्स्ट क्लास खेला है, तो सिर्फ 11 मैचेस खेले, 700 से ज़्यादा रन, 42 की एवरेज। तो वो जो आप सिलेक्टर्स की की बात कर रहे हैं, उन्होंने कुछ तो देखा है कि यार ये मुस्तकबिल ऑस्ट्रेलिया का ही है। देखिए किसी मुल्क का ना सिस्टम या किसी सिस्टम का बनाने के लिए ना आपको वो आई चाहिए होती है जो उससे रिलेटेड लोग होते हैं। वो देखते हैं कि क्या हम इस लड़के को सिलेक्ट कर रहे हैं, 19 साल का है, अभी मैच्योर नहीं है, अभी बिल्कुल नया है, क्या इसमें वो कॉन्फिडेंस है, इसकी गेम में वो मैच्योरिटी है कि ये अभी भी जाके कुछ ना कुछ कर सकता है। और वो मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलियन जो सिस्टम है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का, और जिस तरह उनकी एकेडमीज का सिस्टम है, तो उसमें वो बिल्कुल एक लोग एक्सपर्ट्स इतने लगाए हुए हैं जो सालों साल इन प्लेयर्स को शायद ये अंडर 13 लेवल से देख के ऊपर तक लेके आते हैं और उनको उन पे नज़र में रखते हैं। उनको पता होता है कि इस बंदे ने प्लेयर ने बनना है, इसको चांसेस देते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, जो उनसे हो सकता है करते हैं। और अल्टीमेटली मैं यही समझता हूं कि कोई 70-80% रिजल्ट आपका पॉजिटिव वहां से मिल जाता है। अच्छा, उनकी स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग थी। जॉर्ज बेली से जब पूछा गया कि आप एक 19 साल के लड़के को डेब्यू करा रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज में जिसका ये टेस्ट मैच शायद डिसाइडर हो जाएगा, तो उन्होंने ये कहा कि हम चाह रहे हैं कि हम इंडिया की बॉलिंग के खिलाफ कुछ डिफरेंट करें। तो वो डिफरेंट के चक्कर में उन्होंने ये डेब्यू करवाया। देखिए वही बात है जिन्हें इन्होंने कहा कि बुमराह को इस तरह की शॉट्स खेलना, और बुमराह जो अपनी इस वक्त भी मैं कहता हूं कि बड़ी प्राइम फॉर्म में है और बड़ा जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, वो मैं कहता हूं मेन स्टे है इंडियन बॉलिंग अटैक का। और जिस तरह वो अकेले लेके चल रहे हैं, और मुझे कभी हैरत भी होती है कि इतना एक ऐसा जिनका एक्शन मतलब थोड़ा सा इतना ज्यादा है कि उनकी बैक पे स्ट्रेस बहुत आती होगी, वो भी उसके बावजूद वो 20-20 ओवर करा लेते हैं। और मतलब है कि ये एक मिसाल है। और फास्ट बॉलर की खासकर मैं बात करूं कि उनको भी देखना चाहिए कि बुमराह पूरी जान मार रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसने परफॉर्म करना है तो इंडियन टीम चलनी है, वरना इंडियन टीम के पीछे कुछ भी नहीं है। नॉर्मल मीडियाकर से बाकी बॉलर एक साइड पर तो ये बहुत ज्यादा अब तनकीद शुरू हो गई है, क्योंकि
रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑलमोस्ट अब वो ट्वाइलाइट में पहुंच चुके हैं, अगर आप उन दोनों को उस इक्वेशन से निकाल दें और फिर आप बुमराह को भी रिमूव कर दें तो बड़ी कोई ब्लैक लस्टर सी साइड नजर आती है। नहीं, खासकर फास्ट बॉलिंग तो बिल्कुल ही मेच्योर नहीं है, और बुमराह अगर निकल जाते हैं इंडिया की फास्ट बॉलिंग आर्मी से तो इंडिया के पास पीछे बैकअप इतना नहीं है कि आप एक्सपेक्ट कर सके उनको कि वो 20 विकेटें लेंगे इस टेस्ट मैच में। और मेलबर्न जैसी विकेट पे अब ऑस्ट्रेलिया तो आपको पता है 300 से ज्यादा है, 400 के करीब स्कोर होगा, यहाँ भी क्रैक्स जो है वाइडन हो जाते हैं, और चौथे और पांचवें दिन खेलना यहाँ इतना आसान नहीं होता। इवन ऑस्ट्रेलिया ने अगर फोर्स भी कर लिया फॉलो ऑन तो मैं नहीं समझता कि वो फॉलो ऑन करेंगे, बल्कि वो खुद खेलेंगे ताकि आखिर में इंडिया को ही खेलना पड़े। तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड बड़ा मैटर करता है, और फिर इंडिया की बॉलिंग ऐसी नहीं है कि वो अब बुमराह के अलावा वो चल सके या वो ऑस्ट्रेलिया को थ्रेटन कर सके। ऑस्ट्रेलिया का टारगेट भी वही टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो गया, इंडिया ने हर मैच जीतना है तो तब जाके फाइनल खेलना है, तो तब क्वालिफाई करना है। तो मुझे तो इस वक्त यही लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका काफी फेवरेट है करीब जाने के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने। अच्छा, आपको एक मजे का आर्गुमेंट देता हूँ। कल एक साहब थे जिन्होंने पूरी कैलकुलेशन करके हमें बताया कि पाकिस्तान का भी एक दरवाजा खुला है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने का। तो ऐसे पाकिस्तान का दरवाजा खुल सकता था अगर हम जो बांग्लादेश से हम दोस्त आ रहे हैं वो हम हारते ना तो हमारा भी काफी कुछ चांस बन सकता था, लेकिन अब तो खैर बहुत दूर है। हाँ जी, अब तो पाकिस्तान obviously बहुत दूर है, ये इस तरह की बात नहीं। पाकिस्तान अब सारे टेस्ट मैच भी जीते तो वो वहां पे उतनी पॉइंट्स नहीं आ सकते। मिस किया हमने, हमारा जो खासकर बांग्लादेश वाली जो होम सीरीज हमने लूज की है वो टेलिंग ब्लो थी। वो मतलब इतनी सख्त पाकिस्तान की ये कैंपेन पे असरअंदाज हुई है कि उसकी वजह से पाकिस्तान ऊपर नहीं आ सका। जरूर इंशाल्लाह खेलेंगे, इस दफा नहीं तो अगली दफा खेलेंगे, लेकिन शायद अगली दफा की बात कर रहे हो। नहीं, इसी बार की कोई कैलकुलेशन थी। तो हमारी कौम जो है ना वो कोई मौका जाने नहीं दे रही, वो किसी तरह। और मैं कल भी यही कह रहा था कि बेचारे साउथ अफ्रीका वाले जब भी कोई ऐसा अहम मरला आता है आईसीसी का तो वो हमारे हाथ ही चढ़ते हैं और फिर हम ही उनको जो है वो उधर से बाहर कर देते हैं। बट अब ऑब्वियसली ओनली टाइम विल टेल। उनको एक टेस्ट चाहिए ना जी, अब तो उनको दोनों में से एक टेस्ट चाहिए, एक टेस्ट जीतेंगे तो फाइनल में हो। बिल्कुल, लेकिन जिता देंगे यार, कोई नहीं। चलें जिता, आपने कहा था जिताना पड़ेगा, आपको तो जिताया नहीं हमने, तो चले। लेकिन बताइएगा कैसा देख रहे हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, स्टीव स्मिथ फॉर्म में, मानस लबुशेन फॉर्म में आगे जो बहुत देर से मिसिंग था। देखें टॉप 4 जब परफॉर्म करें, उस्मान ख्वाजा को पता है बड़े अरसे के बाद फॉर्म में आपको नजर आए, उसके ऊपर जितनी बेचारे पे तनकीद होती रही है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया आपको पता है बड़ा सख्त है इस मामले पे, उसको देखना, वापस फॉर्म में आना, लेबुशेन को देखना, क्योंकि लेबुशेन एक मिडिल ऑर्डर के अंदर बड़ा एक आप बैकबोन की हैसियत रखता है, लेकिन कंसिस्टेंटली वो फ्लॉप हो रहा था। लेकिन चीज वो है ना कि यार शायद ट्रस्ट बहुत ज्यादा है, लेबुशेन को बहुत लंबा रन दिया ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें, जो अभी आप बात कर रहे थे ना क्रिकेट कितनी कम खेला हुआ है, जिस कंपेटिव क्रिकेट वो लड़का खेला है 19 साल का, यार अहमद भाई तीसरी बॉल होती है। अभी मैं रिकॉर्ड पढ़ा था, जसमीत बुमराह को 2-3 हजार गेंदों के बाद छक्का लगा है, इतना टाइम स्पैन के बाद एक छक्का लगा, टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ। उसको रिवर्स स्वीप पे गया वो जिस पे बीट हुआ था, 2 जो उसने मारे उसने फिर आपको पता उल्टी शॉटें खेली हैं, जो कि आप पैडल्स को पीछे बात करते हो। दैट मींस के ये होता है कि आपके पास कॉन्फिडेंस कितना, आप काउंटर अटैक करना जानते हो इस चीज को। लेबुशेन से एक अच्छी बात है कि इंडियन टीम का दिमाग हट के अब जो है ना ट्रेविस हेड से उसकी तरफ गया है कि हम उसको साइकोलॉजिकली प्रेशराइज करें। लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच है और ऑस्ट्रेलिया के पास एक बहुत आई वुड प्रोबेबली से एक बहुत अच्छा मौका है कि वो इस टेस्ट मैच को बड़ा जल्दी खत्म कर सकते हैं। बट दैट बीइंग सेड, जाने से पहले आपको ये भी बताना है कि चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल जो है वो बाकायदा तौर पर अब उसका ऐलान हो गया, हमारे सामने आ गया। तो सना कैसे देख रही हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है कि अब फाइनली हम क्रिकेट पे फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सी बातें चल रही हैं। पाकिस्तान तो जो कर सकता था आई थिंक इसके लिए बहुत स्टैंड लिया, और मैंने देखा है बड़े मीम्स ये वो चल रहे हैं, पर पाकिस्तान वाकई जो मैं तनकीद भी ज़रूर करती हूँ जब चीज़ें ठीक नहीं होती, पर पाकिस्तान अपने हैसियत से जितना पुश कर सकता था आईसीसी को और बीसीसीआई को वो करने में कामयाब हुआ है कि इन्होंने ये अप्रूव करा लिया कि हम भी इंडिया जाके नहीं खेलेंगे। बट अगर हम ओवरऑल बात करें क्रिकेट के हिसाब से तो ये कोई इतनी अच्छी रवायत सेट हुई नहीं है कि 2 मुल्क जो हैं वो आपस में अब ना खेलें। बट अब जो है वो है अब हमारे पास। बट आई थिंक ओवरऑल अब देखने को यही है कि एटलीस्ट सारी टॉप टीम्स तो अवेलेबल हैं, और दुबई अब आपके पास वेन्यू एक सेकेंडरी आ चुका है। पर जैसे अवैस ने भी कहा कि पाकपिंडी में 2 मैच ज़रा कम लग रहे हैं, तो आई होप कि एंजॉय भी करें लोग और टिकट्स वगैरह वाला सारी चीज़ें भी सही चल जाएं। बहुत टिकट्स आ चुकी हैं कप्तान के पास, लेनी है तो बताना यार। तो आई थिंक ओवरऑल ऑब्वियसली एक हाइप तो अब क्रिएट हो गई है, फाइनली चीज़ें भी अनाउंस हो गई हैं, अब सारी चीज़ें बाकी अपनी जगह पर
جائیں گی, کرکٹ اچھی دیکھنے کو ملے گی, کیونکہ ون ڈے فارمیٹ میں جس طرح کی ٹیمز اب آ چکی ہیں تو ہوپ فلی بہت اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ. بالکل, میرا خیال ہے کہ جلدی اختتام کی طرف جائیں. پاکستان کو چھٹے کھلاڑی کا نقصان ہو گیا ہے, محمد رضوان بھی آؤٹ ہو کر پویلین واپس چلے گئے ہیں, تو مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. بٹ شاہ جی, جسٹ اے ویری کوئک ورڈ کہ اسکیجول آ چکا ہے, پاکستان کے تینوں وینیوز جو ہیں وہ برقرار. دیکھیں, ایک تو آپ اپنی مرضی کسی پہ فورس نہیں کر سکتے. ہم انڈیا پہ اپنی مرضی فورس تو نہیں کر سکتے کہ آپ ضرور آئیں کھیلیں, لیکن ہم اپنی مرضی تو کر سکتے ہیں. اور فرسٹ ٹائم ہم نے اپنی مرضی کی ہے کہ ہم بھی نہیں جائیں گے. یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے جو میرا الٹیمیٹلی جو پاکستان کو فائدہ دینا ہے. اور انڈیا کو ایک دفعہ پتہ ضرور لگنا چاہیے کہ اگر کوئی اور ٹیم نہیں آتی تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, فینس کا کیا نقصان ہوتا ہے, اسپانسرشپ میں کیا نقصان ہوتا ہے, اوور آل اس کا ایک جو امپیکٹ بنا ہوتا ہے اس ایونٹ کا, اس کو کتنا نقصان ہوتا ہے. اور یہ بڑا ضروری تھا وہ انڈیا کو سمجھانا, اور اس دفعہ انڈیا ضرور سمجھے گا. 27 کے بعد کیا ہوتا ہے تو بات کی بات ہے. اور دیکھیں, وینیو ہمارے پاس 3, جب آپ کی جو ٹوٹل میچز ہیں وہ کم ہو گئے نا, تو پھر وینیو آپ کے 3 میچ ہی آتے ہیں. 3 کراچی ہیں, 3 پنڈی ہیں, اور اگر سیمی فائنل اور فائنل ہوتا ہے پھر وہ لاہور کو زیادہ سب مل جائے گا. تو باقی یہی ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کے انڈیا والے میچ تو سارے نکل گئے نا جی. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن آئی تھنک اویس ایک بار پھر سے بڑے ضروری ہونے والے ہیں آپ سب لوگوں کے لیے, کیونکہ وہ جس ٹکٹس اور وہ پاسے سے بھاگنا چاہ رہے تھے وہ گھوم پھر آ کے پھر واپس وہاں پر آ گئے. میں خوش تھا پنڈی میں میچ نہیں ہے. نہیں وہ تو چلیں, کل آپ کی خوشی ویسے ہی کہیں اور کسی اور لیول پہ تھی, ٹکٹیں نہ دینی پڑ جائے. لیکن آپ کو پھر بھی مبارکباد ہو, اچھا ٹورنامنٹ کھیلے. وہ خیر ہے نہیں جیتے لیکن ٹورنامنٹ بہت اچھا کھیلے. بٹ بہت شکریہ ثنا آپ کا, اویس آپ کا, اور معین شاہ صاحب آپ کا کہ آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے. یہی تھا آج کا پروگرام اسپورٹس 360. مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.